Hello students, today we will talk about production possibility frontier, production, production possibility, possibility frontier, right? In our last lecture, we have talked about scarcity of resources because there are limited resources, but demand is unlimited. But demand is unlimited, right? Due to unlimited demand and limited resources, we have we have to face the problem of scarcity, right? Scarcity. Okay. So these scarce resources has alternative uses. These scarce resources, these scarce resources has alternative uses, alternative uses, right? Due to their alternative uses, every society has to determine, every society every society has to determine how to allocate, how to allocate its scarce its scarce resources, its scarce resources to different goods and services, to different goods and different goods and services. Okay. An allocation of these scarce resources of the economy gives rise to a particular combination of different goods and services, right? This allocation, an allocation of scarce resources of the economy, of the economy gives rise to a particular combination of particular combination of different goods and services, different goods and services, right? Given the total amount of resources, given the total amount of resources, amount of resources, it is possible to it is possible to allocate the resources, to allocate the resources in many different ways, many different ways, many different ways, and to achieve different mixes of all, different mixes of all possible goods and services, goods and services, right?
The collection of all possible combination of goods and services that can be produced, the collection of all possible combination of the goods and services, the goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called production possibility set of the economy. Production possibility set of the economy. Right, students, it means if we have scarce resources, right? So due to those scarce resources, and they have alternative uses, right? Due to alternative uses of these scarce resources, we have to determine how to allocate its स्कैर्स रिसोर्सेज टू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज स्कैर्स है तो हमें उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. जैसे लेबर है, लेबर अगर हमने कॉर्न को प्रोड्यूस करने में भी हमें लेबर चाहिए, राइट? कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें लेबर चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 20 लेबर है, ठीक है, तो 20 लेबर अगर हम कुछ लेबर उसमें से हम कॉर्न का प्रोडक्शन करने के लिए लगाएंगे और कुछ लेबर कॉटन का प्रोडक्शन करने के लिए लगाएंगे, ठीक है? तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अवर रिसोर्स, एंड हेयर वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अवर लेबर इनटू प्रोडक्शन ऑफ बोथ कॉर्न एंड कॉटन, राइट? बट ड्यू टू दिस allocation of scarce resources, right, we have to allocate these resources. There are possible combination, we have to make combination, right? It means जैसे अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज जो 20 लेबर है अगर कॉटन के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो कॉर्न का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज अपने कॉटन के प्रोडक्शन में लगाए, है ना? तो इस तरह से अगर हम थोड़े से लेबर कॉर्न के प्रोडक्शन में लगाते हैं और कुछ लेबर कॉटन के प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो इससे कॉर्न की भी कुछ यूनिट प्रोड्यूस होगी और कॉटन की भी कुछ यूनिट प्रोड्यूस होगी, ठीक है? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. अब देखो, जो रिसोर्सेज जो टोटल रिसोर्सेज है उसका कुछ पार्ट अगर हम कॉटन के प्रोडक्शन में लगाते हैं, कुछ पार्ट हम कॉर्न के प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो दोनों गुड्स की, दोनों प्रोडक्ट की कुछ कुछ यूनिट प्रोड्यूस होगी, है ना? तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको these are the possible combination. Okay, we will do this with the help of graph and diagram, right? Like this, we take here possibility, right? Here we will take corn and here we will take cotton. मान लो, अज्यूम करो कि हमारे पास 20 लेबर है,
ठीक है। अगर हम 20 लेबर को कॉटन के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो हम कॉटन की 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, राइट। अब देखो, हमने सारे 20 लेबर कॉटन के प्रोडक्शन में लगाए तो हमने कॉटन की 10 यूनिट प्रोड्यूस की। कॉर्न के प्रोडक्शन में हमने एक भी लेबर नहीं लगाया है तो इसका प्रोडक्शन ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि हमने अपने सारे रिसोर्सेज कॉटन के प्रोडक्शन में लगाए, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया कि जब हमने 20 लेबर कॉटन के प्रोडक्शन में लगाए, जो टोटल रिसोर्सेज थे हमारे पास, तो कॉटन का 10 यूनिट प्रोड्यूस हुआ और एट द सेम टाइम कॉर्न का 0 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने एक भी रिसोर्स नहीं लगाया है। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, पॉसिबल कॉम्बिनेशन। वी हैव गिवन द नेम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ए, ओके, दिस इज combination, we can say this combination या possible combination, right। अब देखो, सेकेंड में हमने क्या किया, अब जो 20 लेबर है उसमें से कुछ लेबर कॉर्न के प्रोडक्शन में भी लगाए और कुछ कॉटन के प्रोडक्शन में रखे। मान लो 20 में से हमने 2 लेबर जो है कॉर्न के प्रोडक्शन में लगा दिए, ठीक है, और 18 लेबर कॉटन के प्रोडक्शन में ही रखे, है ना। तो अब देखो, हमने यहाँ पे लेबर जो रिसोर्स है उसकी क्वांटिटी को कम किया है, तो इसलिए कॉटन का प्रोडक्शन पहले से डिक्रीज हो जाएगा। मान लो ये हो गया 9, राइट, ओके, एंड 18 laborers can produce only 9 units of cotton, right, and we have shifted 2 labor from cotton production to corn production, so those 2 labor were able to produce 1 unit of corn, right। जो 2 लेबर हमने कॉर्न के प्रोडक्शन में लगाए उन्होंने कॉर्न की 1 यूनिट को प्रोड्यूस किया, राइट, और यहाँ पे 18 लेबर ने 9 यूनिट ऑफ कॉटन को प्रोड्यूस किया, राइट। इस कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया बी, ओके। नेक्स्ट, अगर हमने एक लेबर और कॉटन के प्रोडक्शन से कम किया और उसको कॉर्न के प्रोडक्शन में लगाया, राइट, अब हम बोलते हैं कि हमने यहाँ 17 लेबर से कॉटन का प्रोडक्शन किया तो हमने 7 यूनिट प्रोड्यूस की, और यहाँ पे हमने 3 लेबर्स लगाए कॉर्न के प्रोडक्शन में तो यहाँ पे हमने 2 यूनिट प्रोड्यूस की, ठीक है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज सी, राइट, वी हैव गिवन द नेम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन सी, राइट। नेक्स्ट, अब अगर हमने एक और लेबर कॉटन के प्रोडक्शन से कम किया, उसको कॉर्न के प्रोडक्शन में लगाया, तो अब 16 लेबर ने प्रोड्यूस किया 4 यूनिट ऑफ कॉटन, एंड यहाँ पे कितने हो गए, 4 लेबर हो गए कॉर्न के प्रोडक्शन में, राइट। तो कॉर्न के प्रोडक्शन में 4 लेबर ने कॉर्न की 3 यूनिट को प्रोड्यूस किया, राइट, एंड वी हैव गिवन द नेम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन डी, राइट। नेक्स्ट, अब हमने जितनी भी जो 16 लेबरर्स थे कॉटन के प्रोडक्शन में लगे हुए, अब हमने उन 16 सारे के सारे लेबर को शिफ्ट किया कॉर्न के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो अब सारे 20 लेबर कॉर्न के प्रोडक्शन में लगे और यहाँ पे हमने एक भी लेबर नहीं रखा। तो यहाँ पे अगर रिसोर्स ही नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए तो प्रोडक्शन विल बी 0, ओके। और 20 लेबरर्स थे उन्होंने कॉर्न का प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे उन्होंने 4 यूनिट प्रोड्यूस की। 20 लेबर ने कॉर्न की 4 यूनिट प्रोड्यूस की, और इस कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं ई, ओके। दिस इज अवर possible combination of corn and cotton, right। Now we will show it with the help of diagram like this. On the axis we will take corn, and on y axis we will take cotton, right, and like this corn is 0, 1, 2, 3 and 4, right, 1, 2, 3 and 4,
and cotton is 0, 4, 7, 9 and 10, right? 4, 7, 9 and 10, right? नाउ अब देखो, जब कॉर्न ज़ीरो प्रोडक्शन हो रहा था, जब हमने सारे के सारे लेबरर्स कॉटन के प्रोडक्शन में लगाए, तो कॉर्न का प्रोडक्शन हमारे पास 0 यूनिट था, ठीक है। तो जब कॉर्न का प्रोडक्शन 0 था तो कॉटन का प्रोडक्शन था 10, ओके। अब जब कॉर्न का प्रोडक्शन 1 यूनिट हो गया तो कॉटन का प्रोडक्शन 9 यूनिट था। जब कॉर्न 1 यूनिट था तो कॉटन का प्रोडक्शन 9 था, राइट, लाइक दिस। एंड व्हेन इसको फिर से करते हैं, कुछ साफ नहीं बनेगा हमारा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बनाते हैं इसको। गड़बड़ करेगा ये, ऐसे बनाते हैं इसको। ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉर्न, ऑन द वाई एक्सिस कॉटन, राइट। दिस इज 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, राइट। अब इसको भी ऐसे ही ले लो, 2 का गैप रखो, 2, 4, 6, 8 and 10, ओके। अब देखो, 0 पर जब कॉर्न 0 था तो कॉटन 10 है, राइट। और जब कॉर्न 1 है तो कॉटन कितना है, 9 है, राइट। 1 पे 9 हियर। जब कॉर्न की 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो कॉटन की 7 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, 7 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, राइट। एंड व्हेन 3 unit of corn is produced, at the same time 4 unit of cotton is produced, right? And when 4 unit of corn is produced, at the same time cotton is 0, right? So cotton is 0. Join all these points. इसकी जो शेप बनती है वो ऐसे बनती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की ऐसे बनती है, ठीक है, राइट। दिस इज A combination, this is B combination, this is C combination and this is D combination, okay, है ना। जब सॉरी, this is A combination, this is B combination, this is C combination, this is D combination and this is E combination, right। A पर corn is 0 and cotton is 10, okay, and at the B combination corn is 1 and cotton is 9, right, and at the C combination corn is 2 unit and cotton is 7 unit, okay. At D combination we have corn is 3 unit and cotton is 4 unit, right, and at the E combination we have 4 unit of corn and 0 unit of cotton, right. So its shape will be like this, ऐसे होता है ये। यहाँ पे अच्छा बना नहीं, शायद टेबल अच्छे से नहीं बना हमारा ना, इसको
एग्जैक्ट अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो इसकी शेप ऐसे बनती है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, राइट। ठीक है, तो दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, राइट। जब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को ग्राफिकली शो करते हैं तो दैट इज़ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, राइट। इसमें हमने मोस्टली ये शो करना है कि जब हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं उनका हम किस तरह से उसको उसके कॉम्बिनेशन में यूज़ करना पड़ता है। अब देखो हमारे पास 20 ही लेबर थे, है ना, तो स्कैर्स थे, 20 से ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमने दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने थे, राइट। तो हमने ऐसे ही करना पड़ना था हमें कि कुछ थोड़े से लेबर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगाने पड़ने थे और थोड़े से लेबर दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगाने पड़ने थे। तो इसलिए अगर एक के लिए हम रिसोर्सेज घटा देते हैं, दूसरे में इंक्रीज़ करते हैं, तो जिसमें हमने लेबर को कम किया उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, जिसमें हमने रिसोर्सेज ज़्यादा लगाए उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन है कि अगर एक का प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का हमें कम करना पड़ रहा है ना। तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ production of two product, that is corn and cotton, and we have derived the production possibility frontier with the help of production possibility set, right? Okay, and next we will talk about opportunity cost, right? opportunity cost, right? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब देखो, एज द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी आर स्कैर्स, राइट, वी हैव स्टडीड दैट रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी आर स्कैर्स, राइट, वी कांट प्रोड्यूस ऑल गुड्स दैट द पीपल मे डिज़ायर। जो भी गुड्स हम लोग चाहते हैं वो हम सब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। Therefore, when more resources are allocated to one product, some other product has to be foregone or sacrificed, right? अब अगर हम किसी एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर देते हैं तो जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना। अब देखो, हमने कॉटन का प्रोडक्शन किया, तो अगर हम सारे रिसोर्सेज कॉटन के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो हमें कॉर्न को टोटली सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना। उसका हम बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, है ना। अब या तो फिर हमें दोनों के लिए डिवाइड करने पड़ने रिसोर्सेज, तब हम थोड़ी सी यूनिट कॉटन की प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ी सी यूनिट कॉर्न की प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज देयरफॉर the value of the next best alternative product that is foregone so as to release resources for greater production of the farmer, right? जो opportunity cost है ना वो यही है कि अगर आप एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, है ना। तो द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब जैसे कैसे बोलूँ, अब जो आप नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है प्रोड्यूस करने का, उसके लिए उसकी एक मोर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको पहले वाली जो प्रोडक्ट थी उसके प्रोडक्शन को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। सी हियर, लेट्स टेक इन इट्स definition. As the resources of the society are scarce,
we cannot provide, we cannot produce all goods, we cannot produce all goods, all goods that the people may desire, that the people may desire. Therefore, when more resources are allocated, therefore, when more resources are allocated, are allocated to one product, to one product, some other product has to be, some other product has to be foregone or sacrificed, right? The opportunity cost of a, the opportunity cost of a product, cost of a product is therefore the value of the next best alternative product that is foregone, that is foregone, so as to release resources for greater production of the former, राइट? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि जैसे कॉर्न और कॉटन था, राइट? कॉर्न एंड कॉटन, राइट? अब देखो, अगर इसकी 10 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम 20 लेबरर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका हम 0 प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल रिसोर्स 20 लेबर है, राइट? तो हमने सारे के सारे इसी के प्रोडक्शन में लगाए, इसके प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं लगाया, तो इसका प्रोडक्शन ही नहीं कर पाए, है ना? अब अगर यहाँ से वो रिसोर्स हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो हम अगर मान लो हमने 20 में से 1 लेबर कॉर्न के प्रोडक्शन में लगा दिया, तो इसने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, और यहाँ से 1 यूनिट कम हो गया, क्योंकि अब हमने यहाँ पे सिर्फ 19 ही लेबर रखे, एक हमने शिफ्ट कर दिया कॉर्न के प्रोडक्शन में, ठीक है? तो अब देखो, इस कॉर्न के 1 यूनिट की वजह से 1 यूनिट ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ से रिसोर्सेज हमने रिलीज़ किए, राइट? इसका ग्रेटर प्रोडक्शन करने के लिए, है ना? तो इस 1 यूनिट कॉर्न की वैल्यू इस 1 यूनिट कॉटन के बराबर है, क्योंकि 1 यूनिट ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए कॉटन की 1 यूनिट को कम करना पड़ा, है ना? ठीक है? तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके? द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट दैट इज फॉरगॉन, राइट? द वैल्यू ऑफ, इसकी जो वैल्यू है इस 1 यूनिट की जो यहाँ से डिक्रीज हुआ ना, इसकी वैल्यू, राइट? द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, राइट? ये है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट दैट इज फॉरगॉन,
इसको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा, इस एक यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। किसके लिए? सो एज टू रिलीज रिसोर्सेज, क्योंकि इसको अगर कम किया, इस एक यूनिट को कम किया, तो हमारे पास रिसोर्सेज बचे इसका एक ग्रेटर यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, इसकी एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज रिलीज हुए जब हमने यहाँ से एक यूनिट को कम किया। ठीक है, तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।